ठीक है, सो एज वी आर डिस्कसिंग द एरिया रिलेटेड टू द फर्स्ट 150 सेक्शंस तक का जो एरिया है वो हम लोग कवर कर रहे हैं और 60 क्वेश्चन हमारा सेट नंबर 1 चल रहा है, 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, 65 है ना, एंड द रिमेनिंग ऑफ द क्वेश्चन विल बी डेल्ट टुडे। चलिए 66, ठीक है। द क्वेश्चन इज विजिबल ऑन द स्क्रीन आई बिलीव। ठीक है, सवाल आपका है दैट मार्क द इनकरेक्ट रिलेटिंग टू सीआरपीसी। ठीक है, इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे आपको मार्क करना है। ऑप्शन नंबर 1, that is the CRPC does not applies to the contempt of court proceedings। ठीक है, दूसरा कह रहा है it is a procedure that spells much of the differences between the rule of law and the rule of whim and caprice। तीसरा, the law of criminal procedure is intended to provide a mechanism for the enforcement of substantive criminal law। Yes, we have to mark the incorrect option। Yes, तो पहला है ऑप्शन नंबर ए जो है, what you people think whether it is correct or not। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास 2 लोगों का आंसर है, दैट इज बी। ठीक है, एक और किसी ने बी कहा है। पहले तो ऑप्शन नंबर ए देखो क्या कह रहा है, that the CRPC does not applies to the contempt proceedings। this statement is correct। ठीक है, करेक्ट है या नहीं है कि इनकरेक्ट लगता है आपको? ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ प्रोसीजर दैट स्पेल्स मच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड द रूल ऑफ विम एंड कैप्राइज। ठीक है, पहले तो रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ विम एंड कैप्राइज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ मींस the general principles of law should be followed by the courts, and rule of whim and caprice का मतलब होता है कि जब कोर्ट्स जो है वो आर्बिट्रेरी या बायस्ड तरीके से काम करें। ठीक है, ये इनका मतलब है। नाउ यू हैव टू एनालाइज दैट व्हाट ऑप्शन नंबर बी इज स्टेटिंग। ठीक है, it is the procedure that spells much of the difference between the rule of law and the rules of whims and caprice। Third one है the law of criminal procedure is intended to provide a mechanism for the enforcement of the substantive criminal law। आपका जो सी ऑप्शन है, is it correct or not? ठीक है, दोबारा से सुष्मिता इसको एक बार फॉलो अप करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड ट्राई टू आंसर। ठीक है, चलिए, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। देखो, हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। नाउ एज फार एज द फर्स्ट ऑप्शन इज कंसर्न्ड that CRPC does not applies to the court of contempt proceedings, it is correct statement because the contempt of court proceedings are the contempt of court act is a special law and the proceedings are to be followed according to the special law, so CRPC will not be applicable directly। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इट इज द प्रोसीजर दैट स्पेल्स मच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड द रूल्स ऑफ whims and caprice। इसका मतलब ये है कि whatever the legislature has fixed, whatever the law has been drafted, we have to follow that, we have to follow the rule of law rather the rule of whims and caprice। that is कि कोर्ट्स अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से ऑर्डर्स जजमेंट्स पास जो है वो नहीं कर सकती है। सो हमारा ये जो प्रोसीजरल लॉ है, इट जनरली मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, दैट rule of law is to be followed and the rule of whims and caprice is not to be followed। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट is the proceedings or the provisions given in the CRPC are mandatory in nature, mainly mandatory है ना। so when we are saying it is mainly mandatory, it means that whatever the legislature has stated in this particular law, we have to follow that, you can't exercise your discretions, and that is why ये लिखा है ना the procedure that spells much of the difference। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये चीज बताती है कि the courts cannot exercise their discretionary jurisdictions। this statement is also correct। Number 3, the law of criminal procedure is intended to provide a mechanism for the enforcement of the substantive criminal law।
It is also correct because it is giving you the procedure that how the criminal substantive laws, जैसे कि आपका IPC है या बाकी के जो भी criminal substantive laws हैं जो लोगों की liabilities की बात करते हैं उनमें procedure कैसे लगाया जाए, तो CRPC is related to that also. So the right answer should be none of the above. Is it clear to everyone? Yes. Yes or no करके तो जवाब दे दीजिए. चलिए, coming to the next one. ये सवाल थोड़े से टेक्निकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. ऐसे सवाल एग्जाम में जनरली अगर मैं कहूँ हिमाचल में तो रेयरली पूछे जाते हैं, बट स्टिल अगर हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है वो डिफिकल्ट रहेगा तो हमारे जो इजी फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं. अगला सवाल देखते हैं. हु कैन गिव द आंसर टू दिस. इसमें भी सेम वही सिचुएशन है कि ऑप्शन का मीनिंग समझना है. क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग द सीआरपीसी. आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो मार्क करना है. पहला है द कोड लेज डाउन द क्राइटेरिया ऑन विच इट बेसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस. अगला है द क्लस्टर ऑफ बिलेबल ऑफेंसेस कैन बी कंसीव्ड एज ऑन आइलैंड सराउंडेड बाय एन ओशियन ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंसेस. Number 3, C option है the code of criminal procedure defines what is charge, and D कहता है all of the above are correct. Yes. Yes. What should be the right answer? हमें देखना है कौन सा statement incorrect है. And generally question समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. The reason is option number A समझ में आ जाता है, C भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा हल्का सा 5-10% का दिमाग निकालना है. ठीक है, बी का मतलब क्या है. ठीक है, अभी आई विल टेल यू. पहले ट्राई तो करो. ठीक है, समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या मीनिंग होना चाहिए. चलो, लेट मी कम टू द पॉइंट. लिखा है द क्लस्टर ऑफ बिलेबल ऑफेंसेस कैन बी कंसीव्ड एज एन आइलैंड सराउंडेड बाय एन ओशियन ऑफ द नॉन बिलेबल ऑफेंसेस. का मतलब ये है कि हमारे सीआरपीसी में बहुत ज्यादा ऑफेंसेस जो हैं नॉन बिलेबल रखे गए हैं और उन्हीं में से कुछ 0.% के जो ऑफेंसेस हैं वो बिलेबल रखे गए हैं. ठीक है, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? यस, आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? हमारा सीआरपीसी का शेड्यूल नंबर 1 इट विल टेल यू दैट व्हिच ऑफ द ऑफेंसेस आर बिलेबल, व्हिच ऑफ द ऑफेंसेस आर नॉन बिलेबल. लेकिन क्या बहुत ज्यादा, जैसे कि हम आईपीसी के 511 सेक्शंस की बात करते हैं ना, 109 से लेके 511 तक. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस आर देयर. सो इज 90% ऑफ, और वी कैन से 95% ऑफ द ऑफेंसेस आर नॉन बिलेबल? यस. और सिर्फ 2-4-5% बिलेबल है, ऐसा तो नहीं है. सो इसका स्टेटमेंट का मीनिंग समझो. लिखा था that the cluster of billable offenses can be conceived on islands surrounded by the ocean of non billable offenses. कि पूरा CRPC का शेड्यूल नॉन बिलेबल ऑफेंसेस के ओशियन से भरा हुआ है और उसी में एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें क्लस्टर है जो कि बिलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है. ठीक है, सो अब सही आंसर जो है वो मेरे पास आ गया. दैट इज डी शुड बी द राइट आंसर. ठीक है, कि ऐसा जो है सॉरी ये गलत दे रहे हो आप सुष्मिता, कि डी आंसर होना चाहिए. ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, मार्क द इनकरेक्ट. ठीक है, इनकरेक्ट में अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो पहला कह रहा है द कोड लेज डाउन द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द क्लासिफिकेशन ऑफ बिलेबल नॉन बिलेबल इज गिवन. आंसर इज यस, ये ठीक स्टेटमेंट है. जो सी है आपका ऑप्शन, दैट इज द सीआरपीसी डिफाइंस व्हाट इज चार्ज, ये भी ठीक है. लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है, it appears to be incorrect because it is not a minuscule portion of CRPC which talks about the non-billable offences and the more of the CRPC talks about non-billable. ऐसा नहीं है. It is altogether the policy of the legislature. और बहुत ज्यादा offences हमारे billable हैं और बहुत सारे offences हमारे non-billable category के अंदर हैं. So the complete thing is to be seen in reference to the schedule given in CRPC. तो ये जो statement है ना कि हमारे सीआरपीसी के ज्यादातर जो पोर्शन है वो नॉन बिलेबल है और कुछ एक बिलेबल है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट. सो आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट शुड बी द राइट आंसर. इज इट क्लियर? यस सुष्मिता.
Sir, I beg to differ in the sense that the code doesn't lay down any classification. तो हम खुद बोलते हैं ना कि लेस ग्रेविटी वाले अवेलेबल होंगे, मोर ग्रेविटी वाले नॉन नहीं अवेलेबल। देखो तो ऐसा, कहीं पे लिखा तो हाँ, नहीं है ना नहीं कि नहीं सुनो सुनो सुनो, कभी भी ऐसा सवाल है that what is the difference between billable and non billable offenses, you can't raise this particular जो अभी आपने statement use किया that the serious offenses are non billable and the less serious offenses are billable, though it appears to be the policy of the legislature, but it is nowhere mentioned in the CRPC. In CRPC only the schedule will tell you that what of the offenses are billable in nature and what of the offenses are non billable in nature. And if you go to the schedule, ठीक है, हमारे शेड्यूल के अंदर लगभग 350 के आसपास जो है ऑफेंसेस की बात की गई है जो आईपीसी से रिलेट करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस व्हिच विल टेल यू दैट द ऑफेंसेस आर बिलेबल, मोस्ट ऑफ विल टेल यू दैट ऑफेंसेस आर नॉन बिलेबल. सो वी कांट से दैट द सीआरपीसी इज कवर्ड विद द ओशियन ऑफ द नॉन बिलेबल ऑफेंसेस. ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट. ये जो आपने अभी यूज किया ना स्टेटमेंट दैट इज लेस सीरियस एंड मोर सीरियस ऑफेंसेस, दैट इज जनरली अपीयर्स टू बी द पॉलिसी ऑफ द लेजिस्लेचर, but as far as the technical answer to be seen is that it is the schedule which will tell you that which of the offenses are billable and which of the offenses are non billable in nature. We can't raise any presumption, we can't say anything beyond this, ठीक है. कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, सो मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू आंसर दैट द सीरियस ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड लेस सीरियस आर नॉन कॉग्निजेबल. एब्सोल्युटली absurd answer is this. The reason is it is merely the schedule will tell you that which of the offenses are cognizable in nature and which of them are non cognizable. तो हमारा schedule हमें बताएगा कि क्या चीज जो है क्लासिफिकेशन को रखे जो schedule के अंदर रखी गई है उसे हमें फॉलो करना है, ठीक है. सो ऐसा जनरली कभी भी इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाए या कहीं पे भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बिलेबल, नॉन बिलेबल, सो द बेयर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यू रेफर टू द शेड्यूल एंड शेड्यूल विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है. सर आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस. यहाँ पे लिखा ना क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन तो मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि डिफरेंस जब हम करते हैं तो वो तो मतलब ऑब्वियसली आपने बताया वही पे है ना शेड्यूल में बता रखा है कि यहाँ पे डेफिनेशन भी वही कहती है कि मेंशन दिस शेड्यूल. मैं ये कह रही थी कि क्राइटेरियन के बेसिस पे मतलब क्राइटेरिया नहीं लिखा है कहीं. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ सर? इसी वजह से मैं कह रही थी कि क्राइटेरियन जब हम कहते हैं तो मतलब कहीं पे भी सीआरपीसी में नहीं लिखा है कि मतलब वो मतलब बताया है उन्होंने, मतलब डिफरेंशिएट नहीं करा, सिर्फ उन्होंने मेंशन करा है कि ये वाला अवेलेबल है ये नॉन अवेलेबल है. मतलब शेड्यूल 1 में ना सर इसमें लिखा है कि क्राइटेरियन लेस डाउन द क्राइटेरियन. तो मैं उस पॉइंट पे डिफर कर रही थी कि हाउ लेस द क्राइटेरिया, तो इसमें मेंशन करता है कि दिस ऑफेंस इज अवेलेबल. क्राइटेरिया से बता भी नहीं सकता, इट्स अ प्रोसीजरल लॉ ना. Yes, exactly. Whatever you are stating is perfectly fine. But look, as far as you are concerned with option number A, yes, है ना? Option number A पे आप थोड़ा सा और सर मैं सी पे भी डिफर कर रही हूँ क्योंकि द कोड सीआरपीसी डजंट डिफाइन व्हाट इज, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने डिफाइन किया था चार्ज को. सीआरपीसी में तो सर लिखा है इट इंक्लूड्स मोर हेड्स देन वन, ऐसा कुछ yes, लिखा है ना देखो सर. चलो कमिंग टू द पॉइंट. देखो जब इन्होंने ये कहा ना दैट सीआरपीसी डिफाइंस व्हाट इज चार्ज, ठीक है, सो वी हैव द डेफिनेशन, ठीक है. अब डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है दैट डज नॉट मीन दैट इट इज डिफाइनिंग दैट व्हाट द चार्ज इज, लेकिन दो सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट the definition and that in that section one of the clause relates to that what is charge, ठीक है. so ultimately option number C should be the right option जिसको हम कहेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. वो आप चले के इसका जो एक कहा जाता है ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच पे, सब्जेक्टिविटी यहाँ पे काम नहीं करेगी, नंबर 1. नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए के अगर आप इसको फॉलो अप करें तो लिखा है ना द कोड लेज डाउन द क्राइटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द क्लासिफिकेशन ऑफ बिलेबल और एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस. इसको अगर आप ये देखें क्राइटेरियन ऑन व्हिच इट बेसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंसेस. नाउ एज फार एज द सीआरपीसी इज कंसर्न्ड इट डज नॉट जनरली मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है. बट अगर आप जस्ट कम टू द स्केड्यूल, एक बार स्केड्यूल में अगर आए या देखो स्केड्यूल के अंदर फर्स्ट स्केड्यूल जहां पे लिखा है उसी के नीचे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड ऑफेंसेस आर टू बी क्लासिफाइड इन दीज कैटेगरीज, ठीक है. ये जो यहाँ पे
मेंशन किया है that how you will classify a concerned offense, ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया ये बताया गया that these are the things by which we can classify the offenses, ठीक है. Now as far as it is concerned with option number A, the objective approach is to be adopted, and objective approach states that the CRPC lays down the classification of billable and non-billable offenses according to schedule number 1. Are you getting my point? ठीक है. दूसरा जो है ऑप्शन नंबर सी, इसको भी आप सिर्फ बेयर एक्ट के बेसिस पे देखोगे. आपको अगर सब्जेक्टिव सवाल आ जाए तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. अभी जैसे हम कहेंगे ना, चलो थोड़ा सा इसमें और डिटेल में आते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल है कि क्या सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज सी जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन देता है. द आंसर इज नो, बिकॉज सिर्फ ये कहना that any offense in which the police can arrest a person without warrant, it is a cognizable offense. It is not a definition, rather it is considered to be a characteristic of a cognizable offense. But when it comes to the definitions, तो definition में section 2 clause C के अंदर तो ये बात रखी गई है ना. अब आप जब इसमें subjective approach adopt करते हैं, thereafter we can explain that cognizable offenses or non-cognizable offenses are being classified as given in the schedule, and it is the policy of the legislature which has made certain offenses cognizable, certain offenses non-cognizable, certain billable, certain non-billable. So that is the broader policy which we have to follow. तो उसके accordingly हमें answer करना है that what should be the objective approach and what should be the subjective approach. हम क्योंकि objectivity के सवाल कर रहे हैं तो बेयर एक्ट में जो लिखा है उसको follow करना है. ठीक है. जब हमें सब्जेक्टिविटी आती है कि क्या हमारी डेफिनेशंस में चार्ज को डिफाइन किया गया, द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज मेयरली राइटिंग द चार्ज इंक्लूड्स मोर देन वन हेड ऑफ अ चार्ज. सो दैट इज नॉट द डेफिनेशन, rather the definition of the charge is outrightly different, and you have to follow section 211 till section number 217. Then only we can able to explain that what actually the charge is. Are you getting my point? ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है, चलो ये तो कर लिया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन और मोर ऑफेंसेस इज कॉग्निजेबल एंड द रेस्ट इज नॉन कॉग्निजेबल one, it would be a cognizable case. Thus it is a case, thus a case cannot be partly cognizable and partly non-cognizable. It was held in which of the following case? Yes, try to understand the question and then see what should be the answer. If the offense, if one or more offenses is cognizable, एक से ज्यादा अपराध cognizable हैं और कुछ एक non cognizable हैं, तो पूरा केस हमारा cognizable बन जाता है. ये बेसिकली सेक्शन नंबर 155 के सबसेक्शन 4 सीआरपीसी की बात की जाए. आगे लिखा है thus an offense cannot be partly cognizable or partly non cognizable. It was held in which of the following case? Any idea? If no idea, then we can come to the answer. ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोग साइलेंट हैं. So I believe that I should explain the answer. It is VK Rao. ठीक है, VK Rao. मैं पूरा नाम अगर यहाँ पे लिख दूं तो it is वडलामुडी, MUDI, VADLA is VADLA MUDI, वडलामुडी कुटुंब राव, वडलामुडी कुटुंब राव versus State of Andhra Pradesh, 1961 Supreme Court. This is a case in which the Honorable Supreme Court has stated that कि एक offense या तो cognizable केस के तरीके से हमारे सामने आ सकता है या नॉन कॉग्निजेबल के तरीके से आ सकता है. अगर एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अपराध हुए हैं, कुछ एक नॉन कॉग्निजेबल है, कुछ एक कॉग्निजेबल है, तो पूरा केस आपका कॉग्निजेबल बनेगा. कभी भी एक केस पार्टली कॉग्निजेबल पार्टली नॉन कॉग्निजेबल नहीं हो सकता. कारण उसका ये है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशंस करने के तरीके थोड़े से डिफर कर जाते हैं, एंड हेंस अलग अलग पार्टली कॉग्निजेबल पार्टली नॉन कॉग्निजेबल केस जो है वो नहीं बनता है. सो इट वाज हेल्ड इन, केस का नाम याद रखिएगा, इट इज वडलामुडी कुटुंब राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1961 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इट इज वीके राव का केस है उसमें. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगला सवाल है अगेन मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द code of criminal procedure has not given any test or criterion to determine whether any particular offense is cognizable or non cognizable। दूसरा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है और ध्यान रखिएगा जिस चीज को हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली, अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही रिलेट किया है। पहला ऑप्शन है the code of criminal procedure has not given any test or criterion to determine whether any particular offense is cognizable or non cognizable। दूसरा है any offense is cognizable or non cognizable, it all depends upon whether it is shown in the first schedule। तीसरा है the schedule refers all the offenses whether under CRPC or any other law and put them to cognizable and non cognizable categories। and D option है आपका all of the above are correct। yes, what should be the right answer? दोबारा सिर्फ देख लो, सवाल में आपको मार्क करना है अगर कोई आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है that code of CRPC has not given any test or criterion to determine whether any offense is cognizable or non cognizable। दूसरा, an offense is cognizable or non cognizable, it all depends upon whether it is shown in the first schedule of the code। Third one is the schedule refers to all the offenses whether under the IPC or under any other law, put them to a cognizable and non cognizable categories। and D option is all of the above are correct। yes, सिर्फ कसर का आंसर आया है, बाकी मोस्ट ऑफ यू आर साइलेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इनकरेक्ट। yes, चलो मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द आंसर सी। सुष्मिता आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। सर मैंने ऊपर लिखा था सी इज इनकरेक्ट। अच्छा, सी इज इनकरेक्ट लिखा है। लुक, चलो अगेन मैं उसी पे आता हूं। अभी अभी हमने डिस्कशन किया रिसेंटली, ठीक है, थोड़े ही समय पहले, कि सीआरपीसी में शेड्यूल makes a classification of the offenses that is cognizable, non cognizable, bailable, non bailable। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा। फर्स्ट स्टेटमेंट आप अगर पढ़ें तो क्या कह रहा है, that the code of criminal procedure has not given any test or criterion to determine whether any particular offense is cognizable or non cognizable। Is CRPC is not giving any test or criterion, is it the schedule which will tell you that which of the offense is cognizable, which of the offense is non cognizable? So how we can say that there is no criterion to determine? We have the criteria, that is the schedule। so option number A जो है it appears to be incorrect। ठीक है, समझते जाना, it appears to be incorrect। सेम वही प्रिंसिपल जो अभी हमने पहले डिस्कस किया उसी पे मैं एम्फेसिस ड्रॉ करता हूं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट शेड्यूल। सेम वही स्टेटमेंट आ गई दोबारा से। तीसरा जो है द शेड्यूल रेफर्स टू ऑल द ऑफेंसेस वेदर अंडर आईपीसी और अंडर any other law and put them into a cognizable and non cognizable category। now ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है इट इज करेक्ट। हाउ? लुक, वी हैव द शेड्यूल। शेड्यूल में दो हिस्से हैं। द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, जिसमें हमारे सेक्शन नंबर 109 से लेके 511 तक के प्रोविजंस की बात की गई है। और उसी के साथ साथ शेड्यूल का दूसरा हिस्सा जो है वो ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज की बात करता है। ठीक है, कि अगर किसी लॉ के अंदर ऑफेंस का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया कि वो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, तो हम सीआरपीसी को फॉलो करेंगे। एंड सीआरपीसी का शेड्यूल का दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे फॉलो अप किया जाता है। लेट मी शो यू।
look, is it not written classification of offenses against other laws? ठीक है, against other laws. So CRPC के schedule में दोनों चीजें हैं, ठीक है. दो आपका जो second part है schedule का, वो कभी हमें यूज करना पड़ सकता है, कभी नहीं करना पड़ सकता. अगर किसी स्पेशल लॉ के अंदर चीजें लिखी गई हैं, then we are not going to refer this particular area given in the schedule. लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ इस चीज पे साइलेंट है कि आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा, अवेलेबल होगा या नॉन अवेलेबल होगा, तो हमारे सीआरपीसी के शेड्यूल के सेकंड पार्ट ने वो चीज को क्लेरिफाई किया कि कोई भी ऑफेंस जिसमें जो सजा है वो 3 साल से कम की है, ठीक है. इफ एनी ऑफेंस इज देयर इन विच द पनिशमेंट इज लेस देन 7 years, तो उस पर्टिकुलर केस में जो ऑफेंस का कैटेगराइजेशन है दैट विल बी नॉन कॉग्निजेबल. और अगर किसी भी ऑफेंस में पनिशमेंट जो है वो 3 साल से ज्यादा है तो इट विल बी कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल. तो ये पूरा डिस्टिंक्शन जो है ना, क्लासिफिकेशन जिसको हम कह रहे हैं, वो लिखा गया है, ठीक है. इट इज रिटन ओवर देयर. सो ऑप्शन नंबर सी जो आप मार्क कर रहे थे, दैट इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज रिटन इन द थर्ड स्टेटमेंट, इट इज आल्सो करेक्ट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, यस सर. समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी. अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज intentional omission to assist a magistrate and police under section 37 of the CRPC is punishable under 183, 185, 187 or 189 of IPC. Under which section it is punishable? Look, I am getting some answers. Just hold on. सुरेंद्र 183 में जा रहे हो? सोच समझ के. सेक्शन नंबर 37 सीआरपीसी क्या कहता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट आपकी असिस्टेंस डिमांड करता है, यू आर बाउंड बाय लॉ टू असिस्ट दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर और द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, ठीक है. बट इफ यू डू एन omission and you does not assist the concerned magistrate or the police officer, it will be an offense under which of the sections of CRPC. ठीक है, मेरे पास दो लोगों का जवाब आया है सी, दैट इज सेक्शन नंबर 187, ठीक है. और बाकी लोग जो है वो बहुत ही साइलेंट हैं आज, बहुत ही साइलेंट हैं, ठीक है. सी आंसर जो है वो आ रहा है. सुष्मिता आपका आंसर इज क्विक. Sir, I've said C. अच्छा, सी कह दिया है, ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है. याद करने का तरीका देख लो, 37 और 187, ठीक है. यहाँ से इसको आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि आपको याद रहे हमेशा कि अगर 37 के अंदर एक व्यक्ति मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है तो आईपीसी का 187 उसके अगेंस्ट जो है वो चार्जेस बना सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट मे अरेस्ट अ पर्सन who has been concerned in any non-cognizable offense, who has in his possession with a lawful excuse any implement of housebreaking, who obstructs a public officer while in execution of his duty, and who is a released convict. Yes, any police officer without warrant may arrest a person in which of the following case? पहला है who has been concerned in any non-cognizable offense. दूसरा है who has been in possession with any lawful excuse any implement of housebreaking. तीसरा है who obstructs the public officer while in execution of his duty. And third one है who is a released convict. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग जो है आंसर दे रहे हैं, परफेक्टली फाइन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है that when can reference to executive magistrate shall be deemed to be construed as reference to the judicial magistrate of first class? When in reference to an executive magistrate shall be construed as reference to a judicial magistrate of first class? When the High Court decides, whether legislative assembly of the state by the resolution so permits the state government after the consultation with the High Court,
when the central government with the consultation of the Supreme Court decides, or all of the above. ठीक है, सवाल का जवाब देखिए कौन देता है। सेक्शन अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा है। सेक्शन नंबर 478 पे आएंगे सभी लोग, 478 ऑफ बीट एरिया से सवाल। ठीक है, इधर उधर भटक रहे हो सेक्शन 3 सेक्शन 6 में, कम टू सेक्शन नंबर 478 और पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ठीक है, लिखा है इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट by resolution so permits, the state government may, after the consultation of the High Court, by notification direct the references in section 108, 109, 110, 145, 147 to an executive magistrate shall be constituted as reference to a judicial magistrate of first class. You got the answer? Yes, section number 478 मिल गया। तो कुछ एक सेक्शंस को लेके, जैसे कि 108, 109, 110, 110 के अंदर जिस तरह से बॉन्ड भरवाए जाते हैं, या 145, 147 के अंदर प्रॉपर्टी या लैंड वाटर रिलेटेड इश्यूज अगर डिस्प्यूट्स आते हैं, तो उन सिचुएशंस में एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है, ये बात रखी गई है। और ये कौन करेगा? इट विल बी डन बाय, सवाल पे वापस आ जाओ, इट विल बी डन बाय the legislative assembly of the state by resolution so permits the state government after the consultation of the high court. ठीक है, समझ गए? सेक्शन नंबर कौन सा है? यस, क्विकली, कहां से पढ़ा अभी? सेक्शन नंबर 478 से पढ़ा। ठीक है, अभी देखो कितना ऑफ बीट एरिया है, कितना ऑफ बीट एरिया से सवाल है। लेकिन अब ये क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में बात आती है, तो दिमाग में आता है कि ये सेक्शन 6 से लेके या सेक्शन 9-10 से लेके सेक्शन नंबर 20-22 तक होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट सो, बिकॉज दोज प्रोविजंस आर मेयरली गिविंग यू द डेफिनेशंस, और वी कैन से ये जो अथॉरिटीज हैं ये काम कैसे करेंगी, किसकी सबऑर्डिनेशन में है, कौन अपॉइंट करेगा, एटसेट्रा। बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कंसर्न, बड़ा ही रेयर है आपको सीआरपीसी में कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कुछ रेजोल्यूशन पास करवा के किसी को एम्पावर कर रही हो। तो इट इज वी कैन से जनरली यूज्ड इन द वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज दिस पावर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है व्हेन कैन अ पर्सन रिक्वेस्ट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन? व्हेन कैन अ पर्सन रिक्वेस्ट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन? ऑप्शन नंबर 1, व्हेन ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। Number 2, when he is produced before the magistrate during a magistrate before a magistrate during the period of his detention, when the examination of his body will disprove the commission of any offense, when the examination of his body will establish the commission of any offense, or all of the above. Which should be the right answer? When can a person request for a medical examination? सवाल समझो, सवाल समझो, सवाल समझने में दिक्कत है। एक व्यक्ति अपना मेडिकल एग्जामिनेशन खुद कब करवाने की रिक्वेस्ट करता है? सर, एक व्यक्ति खुद अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने की रिक्वेस्ट कब करेगा? सुष्मिता, सवाल समझो, जल्दबाजी नहीं करनी। एक होता है कि आपने एक्यूज्ड को अरेस्ट किया और आपने उसका मेडिकल करवाया। वो जो मेडिकल करवाया जाता है एक्यूज्ड का, अरेस्टेड व्यक्ति का, वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि वी कैन गेट सर्टेन एविडेंसेस फ्रॉम द मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि कल भी सवाल आया था। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ डिफरेंट है। सवाल कह रहा है व्हेन कैन अ पर्सन रिक्वेस्ट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन। अब रिक्वेस्ट मेड आउट कर रहा है कि व्यक्ति खुद की मेरा मेडिकल करो। When he is produced before the magistrate or during the period of detention. Number 2, when the examination of his body will disprove the commission of any offense. When the examination of his body will establish that commission of any offense against his body. And last option है आपका D. So what should be the right answer? इन 3 ऑप्शंस में से आपको बेस्ट सुटेबल कौन सा लगता है? कसक ने जवाब मुझे दिया है सी। ठीक है, सुरेंद्र भी सी पे आ गए, बाकी लोग यस। सिचुएशन समझने के अकॉर्डिंगली समझ के आंसर देना है। ठीक है, शिखा इज स्टिल सेइंग सी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
है, डी कह रहे हो। शालिनी आप जो है कौन सा कह रहे थे, ए? ठीक है, सुष्मिता इज सेइंग आइदर ए और डी। ठीक है, बी कह रहे थे। देखो चलो, कमिंग टू द पॉइंट, आप 54 की बात कर रहे हो ना? जस्ट होगा। यस सर। देखो 53 में अगर आप देखें, just go for section number 53. Let me tell you certain things over there. 53 बात कर रहा है that examination of the accused by medical practitioner at the request of the police officer, कि पुलिस वाला जो है वो accused को medical practitioner के सामने लेके जाता है और कहता है कि आप इसका मेडिकल करिए। तो it is the request of the police officer। हमारा सवाल इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। 53 capital A, again it is talking about the same kind of a situation, that when a person is to be examined, he is the accused of a rape offense, so at the request of the police officer his medical examination can be conducted। 54 capital A वो identification की बात करेगा, ठीक है, just hold on। and 54 जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, 54 में अगर आप देखें तो एक तो यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उस अमेंडमेंट को ध्यान से समझ लेना। और दूसरी चीज कि सेक्शन नंबर 54 में पहले एक प्रोविजन हुआ करता था, मैं आपको थोड़ा सा उस पर लिखे जाता हूं, कि किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता था तो रिक्वेस्ट पे उसका मेडिकल, पुलिस वाले रिक्वेस्ट करते थे और फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका मेडिकल कर देते थे। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट वाला प्रोविजन है 54 से इसको रिमूव कर दिया गया और अब ये ड्यूटी बाउंडेशंस कर दी गई हैं पुलिस ऑफिसर्स की कि जब भी आप किसी का भी मेडिकल किसी को भी अरेस्ट करोगे तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। नाउ एज फार एज द कंसर्न्ड क्वेश्चन इज देयर, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे सवाल है, दैट क्वेश्चन इज दैट व्हेन कैन अ पर्सन कैन आस्क दैट काइंडली मेडिकली एग्जामिन मी। सो आप अगर ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से पढ़ें, सो यू विल गेट समथिंग ओवर हियर। When the examination of his body will establish the commission of any offense against his body, at that point of time that person can request for the medical examination। ठीक है, तो इसका जो right answer है, that right answer should be option number C। ठीक है, ये जो लिखा है ना, when he is produced before a magistrate or during this period of detention, at that point of time it is not the person who will request that kindly medically examine me, it is the ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स टू डू सो। ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट जो है वो करवा लेंगे, व्यक्ति जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करता। जो आपका बी ऑप्शन है, व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी विल डिस्प्रूव द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस बाय हिम, तो ये भी नहीं है। लेकिन द राइट आंसर इज कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ हो और अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, सो इट विल गिव यू अ सर्टेन क्लू दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट दैट पर्सन। सो दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, सिचुएशन में बस एक ही चीज को आपने यहाँ पे समझना था, ये जो लिखा है ना, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन। कभी भी 53 कैपिटल ए इन पॉइंट्स की बात ही नहीं करेगा। एक व्यक्ति कभी भी खुद रिक्वेस्ट नहीं करता है उसका मेडिकल करवाया जाए। ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने अगर प्रोडक्शन हुआ है, मैजिस्ट्रेट को लगता है मेडिकल करवाने की जरूरत है, तो मैजिस्ट्रेट विल आस्क द पर्सन्स मेडिकल टू बी कंडक्टेड। बट अगर उसकी बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है और वो चाहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, आप कह रहे हैं कि सेक्शन 54 आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेरी सुष्मिता। सर आई एम आस्किंग कि इसमें सेक्शन 54 लगेगा जो कॉन्सेप्ट मतलब नहीं 54 भी नहीं लगेगा। इट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वी कैन से जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि आप देखो ना, मान लीजिए देयर इज अ पर्सन अगेंस्ट होम द डोमेस्टिक वायलेंस इज बीइंग कंडक्टेड। ठीक है, फिजिकल क्रुएलिटी की गई, तो द मोमेंट द फिजिकल क्रुएलिटी इज देयर, दिस पर्सन विल गो टू द मेडिकल practitioner and he will say that kindly medically examine me so that it can be established that an offense against his body is committed over there। ठीक है, तो यहाँ पे ना 53 लगेगा, ना 53 कैपिटल ए लगेगा, ना 54 लगेगा, क्योंकि ये तीनों सेक्शंस एक्यूज्ड के लिए हैं। तीनों सेक्शंस एक्यूज्ड के लिए हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
विक्टिम की। ठीक है, अब यहां से जब हम विक्टिम की बात करते हैं तो सीआरपीसी के अंदर एक प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन नंबर 164 कैपिटल ए। 164 कैपिटल ए बात करता है कि कोई भी लेडी जिसकी अगेंस्ट रेप का ऑफेंस हुआ है उसका मेडिकल करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दैट इज आल्सो द ड्यूटी फाउंडेशंस ऑफ द लॉ, यू हैव टू गेट दैट लेडी मेडिकली एग्जामिन्ड बिकॉज अगेंस्ट दैट लेडी द ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन कमिटेड, सो दैट कैन बी वी कैन से कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, लेकिन इट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, आज के क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं है, ये सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस पूछे गए ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना सीआरपीसी जो है आपको फैक्चुअल आता है। आज के क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं। अगला सवाल, अभी तक देखो हमने सिर्फ 9 क्वेश्चन डिस्कस किए आज की क्लास में और लगभग 1 घंटा होने वाला है। क्वेश्चन इज विच इज ट्रू, सही स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। Inquiry means every inquiry including the trial under the code by the magistrate or court. Inquiry means every inquiry other than trial conducted under this code by the magistrate or court. Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidences conducted by a magistrate or by a person who is authorized by the magistrate in this behalf, and all of the above are correct. सुरेंद्र जी डी जवाब दे रहे हो आप, सोच समझ के। सी ऑप्शन को देखते ही आपने अपना आंसर पलट दिया। सी ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ें तो लिखा है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट। ये गलत है, इट इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, तब इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, और वैसे भी क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इंक्वायरी डज नॉट इंक्लूड्स ट्रायल। ट्रायल एंड इंक्वायरी बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, दे बोथ डज नॉट ओवरलैप ईच अदर। जहां पे इंक्वायरी खत्म होती है वहीं पे ट्रायल शुरू होता है, या बोथ आर वी कैन से आर नॉट कोएक्सटेंसिव, बोथ आर सेपरेट टर्म्स। तो ये जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, बी जो है वो सही है। यही गलती होती है जब हमने पढ़ लिया कि इन्वेस्टिगेशन में, हम जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि हमें तो पता है कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच के अंदर क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट और एविडेंसेस कंडक्टेड। अब ये आप लास्ट में पढ़ोगे ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, तो ये हम मार्क कर देंगे। लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि बीच में पुलिस ऑफिसर की जगह मैजिस्ट्रेट लिख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आंसर्स करने क्वेश्चन में ऑप्शन को हर एक बार क्रॉस चेक करके जरूर देख लेना है, कभी कभी आता आता सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 75, दैट मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट आएगा यहाँ पे, नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट इफ, आप इस तरह से पढ़ेंगे, when the complaint is made in writing by a court or by a public servant। कौन सी वो सिचुएशंस है जब मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेते समय कंप्लेनेंट को ऑन ओथ एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, when the complaint is made in writing by the court or public servant, when the complaint is in writing and the magistrate makes over the case for the inquiry or trial to another magistrate, the magistrate taking cognizance has to examine the complainant in the all cases। Which of the following is correct? ठीक है, एक और ऑप्शन भी है, let me come to that one। D ऑप्शन है that A and B both are correct। D and B both are correct। सेक्शन नंबर 200 से आपका सवाल है, मैजिस्ट्रेट को कब कॉग्निजेंस लेते समय कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में है और कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट के थ्रू आई है, या फिर कंप्लेंट राइटिंग में है और मैजिस्ट्रेट ने जो केस है वो मेकओवर किया है इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद एक दूसरे मैजिस्ट्रेट। यस, ठीक है, ए आंसर दे रहे हो, सोच समझ के जवाब देना है। लुक, इफ the magistrate has already taken cognizance over the complaint and thereafter he makes over the complaint to the other magistrate, the magistrate need not required to
री एग्जामिन द कंप्लेनेंट, ठीक है, ठीक है। शालिनी कह रही है सर डी आफ्टर रीडिंग ऑल दी ऑप्शंस, ठीक है, डी जो आंसर है दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 200 में ये दोनों ही चीजें जो हैं ये कवर की गई हैं। दोनों चीजों में क्या है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लीट दिया है, राइटिंग में है, तो आपको पब्लिक सर्वेंट को एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नंबर 2, अगर कोर्ट के थ्रू कंप्लेंट आया है, राइटिंग में है, तो आपको एग्जामिनेशन करने की, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। नंबर 3, कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में है और मैजिस्ट्रेट ने वो केस इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद मेकओवर कर दिया किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को, तो दूसरे मैजिस्ट्रेट को जब केस आया, मेकओवर हुआ केस है, मार्किंग हुई है, तो दूसरे मैजिस्ट्रेट को दोबारा से कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ना, इसमें कुछ एक राइडर्स भी साथ में चलते हैं, राइडर्स भी साथ में सेक्शन नंबर 200 अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट दोस राइडर्स आर, बट एज फार एज द कंसर्न्ड क्वेश्चन इज देयर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द सुटेबल आंसर, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी जो है इट अपीयर्स टू बी करेक्ट, बट सब्जेक्ट टू द राइडर्स व्हिच आर देयर इन सेक्शन नंबर 200, तो उनको एक बार जरूर आप गो थ्रू करना, ठीक है। सिचुएशन देखो इस तरह से होती है कि जैसे एक सीजीएम के पास आपने कंप्लेंट मूव किया, ठीक है, सीजीएम ने कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद केस जो है वो मेकओवर कर दिया किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, मेकओवर मतलब मार्किंग कर दी केस की, और जब मार्किंग की गई तो सीजीएम साहब पहले कॉग्निजेंस ले चुके थे, उसके बाद मार्किंग करी है, तो कॉग्निजेंस लिया कैसे, यू हैव एग्जामिन्ड द कंप्लेनेंट इटसेल्फ फर्स्टली, तो अगर सीजीएम ऑलरेडी एग्जामिनेशन कर चुके हैं, उसके बाद मेकओवर कर देते हैं केस, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दोबारा से री एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो राइडर की मैं बात कर रहा हूँ वो राइडर ये है कि अगर सीजीएम ने कंप्लेनेंट को अभी एग्जामिन नहीं किया और बिना एग्जामिनेशन किए केस को मेकओवर कर दिया है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर रहेगी कि वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। दिस इज द राइटर व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, बट एज फार एज द कंसर्न्ड क्वेश्चन इज देयर, सो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट शुड बी द सुटेबल आंसर ओवर हियर। लेकिन इसमें ना एक आप अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए और आपने ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया, ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड वाले में ना आप जरूर ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एंडेड है, ये नहीं लिखा गया कि जिस मैजिस्ट्रेट ने मेकओवर किया है केस उसने कॉग्निजेंस लेते समय कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया था या नहीं किया था, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा ओपन एंडेड है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे ठीक है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी ठीक कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू द सिविल सर्जन, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, ये आगे के एरिया से सवाल आ गया है, 174 से 176 के एरिया से आया है। In what circumstances the body of the deceased to be forwarded to the civil surgeon? Number 1, the case involves suicide by a woman within the 7 years of marriage. The case relates to the death of a woman within 7 years of marriage in the circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense in relation to such woman. Number 3, the case relates to the death of a woman within 7 years of marriage and any relative of the woman has made the request in this behalf. And D1 is all of the above. किन situations में डेड बॉडी को मेडिकली एग्जामिन करवाने के लिए आप जो है सिविल सर्जन के पास भेजोगे, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, कहां से आ रहा है ये क्वेश्चन, आपका सेक्शन अगर रेफर कर पाए तो बहुत अच्छी बात। यस, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, विद सेक्शन, इट इज सेक्शन नंबर 174 दैट टॉक्स अबाउट द इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इंक्वेस्ट कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन बनाएगा, वो सारी बातें 174 में लिखी गई। अगला सवाल, इंडिकेट द करेक्ट, सुष्मिता 176 नहीं है ये, ठीक है, 176 में इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स। 176 बात करता है इंक्वेस्ट उन सिचुएशंस में जब कभी कस्टोडियल डेथ्स हो जाए या कस्टोडियल रेप अगर होता है, तो उन सिचुएशंस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इंक्वेस्ट कंडक्ट करते हैं, और वहां पे भी ऐसी चीजें हो सकती है कि डिसीज्ड की बॉडी को डिसइंटर करना पड़ रहा है, दोबारा से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन सर्जन के थ्रू करवाना पड़ रहा है। लेकिन ये वाली जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, मैरिड वुमेन एंड विद इन द 7 years of marriage the marriage is there, so 174 अगर आप एक बार देखें तो वहां पे आपको प्रोविजंस मिलेंगे जिसमें ये चीज लिखी गई है, लास्ट का सबसेक्शन आपको मिल जाएगा।
ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए, offense to be committed in the presence of the magistrate whether executive or judicial। बी ऑप्शन है offense committed within the local jurisdiction of the magistrate। थर्ड इज magistrate may himself arrest or order any person to arrest the offender, and last one is D, that is all of the above। ठीक है, डी आंसर जो है वो आप लोग दे रहे हैं, परफेक्टली फाइन। सेक्शन नंबर 44 से सवाल हमारा है और सेक्शन नंबर 44 कहता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को जो उनकी मौजूदगी में कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जिसमें वो अरेस्ट कर सकते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हो, उसको अरेस्ट खुद भी कर सकते हैं और किसी के थ्रू करवा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन cannot award the punishment exceeding 1 year। सवाल दोबारा से पढ़ लो। The court of magistrate in default of the fine cannot award imprisonment exceeding 1 year, 1/2 of the imprisonment which the magistrate is competent to inflict, 1/4 of the imprisonment which the magistrate is competent to inflict, whole of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict। Yes, ठीक है, सी आंसर आ रहा है, that is 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict। perfectly fine, C is the right answer। अगले सवाल पे आते हैं, when the person summoned cannot be found with due diligence, the summons may be served on। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को आप ढूंढने गए, समन उसको सर्व करने और वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो आप समन किसे दोगे? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रिजाइडिंग विद हिम, सीनियर मोस्ट एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रिजाइडिंग विद हिम, some adult male member of the family, any neighbor normally residing in that area। सुष्मिता सी पे हैं और बाकी सभी लोग बी पे हैं। थोड़ी सी गड़बड़ है सुष्मिता समझने में। कभी भी जब आपके सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स, तो सिविल मैटर्स में समन्स की सर्विस करते समय आप किसी भी घर के एडल्ट व्यक्ति को समन की सर्विस करवा सकते हैं, बट एज फार एज द क्रिमिनल केसेस आर कंसर्न, एज फार एज द क्रिमिनल केसेस आर कंसर्न, अगर व्यक्ति घर पे खुद नहीं मिलता है तो आप उसके घर में जो भी सीनियर मोस्ट एडल्ट, सीनियर मोस्ट तो नहीं मतलब एडल्ट मेल मेंबर अगर है, तो उसी को समन्स की सर्विस जो है वो की जाती है। दोनों में डिफरेंशिया है, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। लेट मी कम टू द सेक्शन, लेट मी मेक यू द क्लैरिफिकेशन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 64 पे आओ। 64 में हम पढ़ रहे हैं that when a person summoned cannot by exercise of due diligence be found that the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with the adult male member of the family residing with him। ये भी जरूरी है, वो व्यक्ति साथ में रहता होना चाहिए। ठीक है, एडल्ट मेल मेंबर, एडल्ट फीमेल को जो है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो लिखा है, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। ये देखो जस्ट क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से। लिखा है that some adult male member of the family residing with him। ठीक है, हमारे सेक्शन नंबर 64 में भी यही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सीनियर मोस्ट एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, तो सीनियर मोस्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, सीनियर मोस्ट की जरूरत नहीं। सर सेक्शन में तो सम अडल्ट मेंबर लिखा है, मैंने तो उस हिसाब से बोला था ना, मतलब अडल्ट सीनियर तो कहीं नहीं लिखा है। तो हाँ नहीं, आपने ऑप्शन सी दिया है। यस सर, ठीक सर है, सबने आपने बी बोला, मैंने अच्छा सी सभी बोला। ने बी बोला है। ठीक है ठीक है, इट इज माय मिस्टेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी ठीक है, बाकी जितने बी वाले थे उनका गलत है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, ये सीनियर मोस्ट एडल्ट मेल मेंबर नहीं है। ठीक है, इट इज द सम एडल्ट मेल मेंबर। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है द पावर ऑफ अ प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट अ पर्सन एक्सटेंड्स टू अरेस्ट अ पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब आ जाए। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
ठीक है रमेश, आप बड़े मैंने देखा कि बहुत ही कम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, या तो बीच में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें यू आर नॉट आई बिलीव कंफर्टेबल, probabilities might be there that you have not gone through with the direct in details, ठीक है ऐसा हो सकता है शायद, ठीक है रेस्ट तो आप ही बता पाएंगे। ठीक है अगला सवाल है इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्चेस। ठीक है सर्च से रिलेटेड हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है। नंबर 1 इज when person we searched in is woman, यहाँ पे इस आएगा the search shall be made by another woman with strict regard to decency। दूसरा है the officer making search can call upon two or more independent respectable inhabitants of the locality। Number 3 is the search shall be made in the presence of the witnesses, and last one is all of the above are correct। yes ठीक है I am getting the answer that is D, perfectly fine, D is the right answer। coming to the next one, अगला सवाल है सेक्शन नंबर 132 सीआरपीसी प्रोटेक्ट्स एक्शन टेकन इन गुड फेथ which extends to executive magistrate or police officer acting in good faith, armed forces officer acting in good faith, member of armed forces doing an act in obedience of the order, or all of the above। 132 की बात है। सेक्शन नंबर 132 yes what is there in section number 132? 133 तो सबको याद हो गया, कंडीशनल ऑर्डर्स की बात है। 132 में क्या है? ठीक है डी आंसर मेरे पास आ रहा है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कसक आप सी कह रहे हो, दैट इज बाकी ए और बी ऑप्शन में क्या आपत्ति है? जस्ट टेक आउट सेक्शन नंबर 132। Look, 132 जनरली जो है वो प्रोटेक्शन की बात करता है। सेक्शन नंबर 129, 130, 131 की बात है। अब इन 129, 130 और 131 में क्या है पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 129 कहता है कि कभी भी जैसे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है तो आपको सिविल फोर्स को एक्सरसाइज करते हुए उस भीड़ को वहां से डिस्पर्स करना है। ठीक है हिंदी में कभी कभी जब हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जो पुलिस के प्रमोशनल पेपर्स की प्रिपरेशंस करते हैं, तो उनको जब हम पढ़ाते थे तो इसको हिंदी में पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज 129, 130, 131। तो डिस्पर्सिंग द अनलॉफुल असेंबली इस तरह से उसको अगर यूज किया जाता था तो उसको हिंदी में कहते थे वहां से तितर बितर कर देना। ठीक है हिंदी का अगर आप डायरेक्ट उठाएंगे डिगलॉट एडिशन अगर देखें तो वहां पे इसी तरह से मिलेगा। सो कभी भी कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में काम कर रहा है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर या मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस व्हाइल डूइंग एन एक्ट इन द ओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर, if he is doing something to disperse the unlawful assemblies, और अगर लाठीचार्ज करना पड़े ऐसे ऑर्डर्स आपको पास करने पड़े तो whatever you are doing in good faith you have been given the protection according to section number 132 of CRPC। 132 आइसोलेशन में काम नहीं करता है, rather 129, 130, 131 के साथ ही चलेगा। ठीक है क्लियर हो गया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर जैसे मान लो भीड़ इकट्ठी अनलॉफुल असेंबली आ गई और धरना प्रदर्शन कर रही है तो सिविल फोर्स को एक्सरसाइज करके वहां से डिस्पर्स करेंगे। मान लो वहां पे लोगों ने थोड़ा सा आर्म्ड रिबेलियन करना शुरू किया है तो वहां पे जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो जो भी हमारा कमीशन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर है वो भी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो दिस इज जनरली बीइंग रेगुलेटेड बाय सेक्शन नंबर 132। अगला सवाल, the 24 hours mentioned in section 57 is inclusive of the time necessary for the journey from place of arrest to the magistrate's court, exclusive of the time necessary from the journey from the place of arrest to the magistrate's court, exclusive of the time from the journey from the police station to the magistrate's court, and exclusive of the time of journey from the place of arrest to the police station, but inclusive of the time of journey from police station to the magistrate's। section number 57 से आपका सवाल है, आंसर देखते हैं कौन होता है। ठीक है बी पे आप लोग जनरली आ रहे हैं दैट सेक्शन 57 के अंदर जो 24 घंटे का समय है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ जर्नी
place of arrest to the magistrate's court. So B answer is perfectly fine. Question number 84. ठीक है, question number 84 है, when can a court issue search warrant? When the court has a reason to believe that the person to whom summons of order made will not or would not produce the document, when such a document is known by the court to be in the possession of any person, when the court considers that the purpose of inquiry or trial or other proceedings will be served by journal search, and last one is both A and C are correct. कोर्ट कब सर्च वारंट जारी करता है, ऐसा एक सवाल हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी से हमने थोड़ा सा एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया था. When the document is not known by the court to be in the possession of which person the court can issue search warrant. लेकिन जब आपको पता ही है कि किसके पास है तो सर्च वारंट भेजने की क्या दिक्कत, क्या जरूरत है? तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर द राइट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ रहे हैं, तो कंक्लूजन पे आ गए हैं. 3-4 सवाल बचे, फिर लागू करेंगे. क्वेश्चन है that section number 125 CRPC mentions that if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain the person mentioned in section, मतलब husband, parents या जो son and daughter की बात आ रही है, अगर वो व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है या नेग्लेक्ट करता है मेंटेन करने के लिए, the magistrate of first class may allow the allowance of at such monthly rate as he thinks fit. दूसरा है such rate shall not exceed 500. तीसरा है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अलाउ द अलाउंस नॉट एक्सीडिंग 10,000. और लास्ट वन है नन ऑफ देम. यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कसक डी कह रहे हो या गलती से डी टाइप हो गया? यस, व्हाट अबाउट अदर? यस शिखा, What should be the right answer? 125 के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है जब मेंटेनेंस ऑर्डर पास करते हैं तो क्या वहां पे कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स्ड है? द आंसर इज पहले होता था 500 रुपए, लेकिन अब नहीं. ठीक है, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अगला सवाल. The Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005 received the assent of the President on 21 जुलाई 2005, 23 जून 2005, 22 अगस्त 2005, 20 सितंबर 2005. जल्दी से जवाब. It is 23/6/2005 is the right answer. That is 23rd of June 2005. ठीक है, अभी सुष्मिता आप ध्यान से देखिए सवाल को. डी नहीं है, 20 सितंबर 2005 वाली डेट है या 23 जून 2005 वाली डेट है विद इफेक्ट फ्रॉम जो लिखा होगा उसे फॉलो कर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट shall be given by the officer in charge of the police station to only district magistrate, only SDM, judicial magistrate of first class, either DM or SDM. yes, सेक्शन भी अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Report of the person arrested without warrant shall be given by the officer in charge of the police station to DM, SDM, judicial magistrate first class, or either SDM or DM. ठीक है, so some of you are giving the answer that is D, and सुष्मिता का आंसर जो है मेरे पास A आया है. Now you people just come to section number 58. सेक्शन नंबर 58 में आएंगे और देखेंगे वहां पे कि किसे जो है रिपोर्ट सबमिट की जाती है. Look what is written. क्या SDM का नाम यहाँ पे लिखा है? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन shall report to the DM or if he so directs to the SDM. जब आप ऑप्शन नंबर डी पे आ रहे हो ना, that is ऑप्शन नंबर डी, either to DM or to SDM. ठीक है, सो इसका मतलब कि आप चाहे डीएम के पास ले जाओ या एसडीएम के पास ले जाओ, इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस. बट हमारा सेक्शन नंबर 58 कहता है कि आप जाओगे तो डीएम के पास, लेकिन अगर डीएम ने किसी एसडीएम को
ऑथोराइज कर दिया है ऐसी रिपोर्ट्स को लेने के लिए, तो फिर एसडीएम के पास हम जा सकते हैं. सो द राइट आंसर एज फार एज द कंसर्न सिचुएशन इज कंसर्न शुड बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इधर ए और बी में आप नहीं जाओगे. उसका कारण मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है दैट द रिपोर्ट टू द एसडीएम और डीएम. ये यहाँ पे ये लिखा है इफ ही सो डायरेक्ट, मतलब डीएम अगर डायरेक्ट करते हैं तब एसडीएम के पास जाएगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है. So coming to the last question for today. ठीक है, under which appropriate section a magistrate may issue an order of injunction. Injunction का order magistrate जो है वो किस section के अंदर पास करते हैं? 133, 142, 144, 145. Last question है आज का ये. Let me see who can give me the right answer without touching the Bail Act. ठीक है, 142 में 2 लोगों ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया. ठीक है, सुष्मिता आप सी पे आ गए. 144 नो. गो टू सेक्शन नंबर 142 ऑफ द सीआरपीसी. सेक्शन 142 पे आओ एंड सी दैट व्हाट इज रिटन ओवर देयर. ये सवाल एचपी जुडिशरी में भी लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था. ठीक है, कि जो इंजंक्शन का ऑर्डर है वो मजिस्ट्रेट कौन से ऑर्डर कौन से सेक्शन के अंदर पास करते हैं. सो सेक्शन नंबर 142 स्टेट्स दैट इंजंक्शंस पेंडिंग इंक्वायरी. कभी भी अगर पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं, 133 का कोई ऑर्डर पास करना है, कोई इंजंक्शन को मजिस्ट्रेट को लगता है मुझे लगाना चाहिए, तो 142 इंक्वायरी के दौरान जब तक इंक्वायरी खत्म ना हो इंजंक्शन अगर पास करना पड़े, सो मैजिस्ट्रेट हैज दैट पावर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 142 ऑफ सीआरपीसी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी रहा है. क्वेश्चंस ट्रिकी थे, लेंथी क्वेश्चंस थे, माइंड एप्लीकेशन था और कॉन्सेप्चुअल थे. ठीक है, सो बाय दिस वी आर क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे. नाउ इसके साथ साथ अभी ये वाले एरियाज में से तो सवाल और भी बन सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू नाउ कि अगला जो आपका एरिया है दैट इज ऑनवर्ड सेक्शन नंबर 149. ठीक है, 149 से लेके आपका सेक्शन नंबर दैट इज आई बिलीव इट टू बी 260 तक, 260 तक पहले कवर करते हैं, जिसमें आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया और ट्रायल का एरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, हाँ सुष्मिता पूछिए, क्या सवाल है, पूछिए. सर मेरी क्वेरी थी, वो जो आप आईपीसी का कह रहे थे ना, आप कंपेंडियम बना रहे हो, मतलब हाँ नहीं वो उसमें मैं बता देता हूँ कहाँ तक काम पहुंच गया है. अप्रोक्सीमेटली द सेक्शंस आर बीइंग कवर्ड. ठीक है, अभी उसमें सिर्फ हाईलाइट करना है मुझे कुछ एक एरिया जिसपे जो आपका फोकस है वो रहना चाहिए. सो वो अभी चल रहा है. अलोंग विद दैट सर्टेन केस लॉज आर टू बी इंसर्टेड, तो दैट इज अंडर प्रोसेस है ना. मेरे पास टाइम नहीं होता है, बहुत दिक्कत है. ठीक है, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग 11 बजे से लेकर 9 बजे तक आई एम पैक्ड. ठीक है, तो वो टाइम की बहुत दिक्कत आती है कि ये सब जो एडिशनल वर्क है ये करने का टाइम मिल जाए. तो लेकिन फिर भी आई एम डूइंग इट इन द पॉजिटिव मैनर एंड इट विल बी गिवन टू यू पीपल इन द मीनवाइल. ठीक है, आई विल ट्राई एट माय लेवल बेस्ट, कितना जल्दी हो जाएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर. यस यस सर. सर जो आपने सर वो समन वो वाला बताया ना सर, एडल्ट मेल मेंबर वाला जो क्वेश्चन था सर, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार बताना सर. उस टाइम. जी सर. ठीक है ठीक है. देखो हमारे ये जो सिविल मैटर्स है ना, सिविल मैटर्स में जब भी समन्स जाते हैं तो सीपीसी के अंदर आपको ये प्रोविजंस मिल जाएंगे ऑर्डर नंबर 5 के अंदर. ठीक है, तो वहां पे जब हम सीपीसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहां पे भी ऐसा सवाल आ जाएगा. तो सिविल मैटर्स में जब भी समन्स की सर्विस होती है तो क्योंकि सिविल नेचर का डिस्प्यूट है तो आप घर के किसी भी बड़े व्यक्ति को समन जो है वो दे सकते हैं, इधर मेल और फीमेल, डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस. जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, तो क्रिमिनल केसेस में अगर कोर्ट ने समन जारी किया है और समन जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आया है वो व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है, तो घर पे कोई भी अगर एडल्ट मेल मेंबर अगर होगा तो हम उसे समन्स की सर्विस कर सकते हैं और वो ड्यू सर्विस मानी जाएगी. ठीक है, दैट इज द पॉइंट. जो ऑप्शन था उसमें लिखा था सीनियर मोस्ट एडल्ट मेल मेंबर, तो सीनियर मोस्ट की जरूरत नहीं है. Any one person who is the adult male member of the family, that person can be served with the summons and that service is a due service. ये चीज थी. जी सर, थैंक यू सर. Okay, thank you so much. Excuse me, sir. Yes. Sir, 1 minute.
सर कल मैं क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मैं वो कल वाला जो लेक्चर है वो अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा आपका क्वेरी था, मेरे ध्यान में आया, ठीक है। तो कल सुष्मिता का भी सेम क्वेश्चन था, आपका भी सेम वही है कि वो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्या वो रॉबरी बनेगा या नहीं बनेगा। रॉबरी में, थेफ्ट को रॉबरी बनाने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है दैट इज इफ अ पर्सन इज टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी विद हिम एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज कॉजिंग हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तब वो रॉबरी बनता है। उस कंसर्न सिचुएशन में उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी छोड़ दी है and he is running without the property, he is not taking away the property at that point of time, so we can't say that section number 390 की जो ingredients हैं technically वो apply हो रहे हैं। so हम उसको theft में या criminal force और assault के जो charges लगा सकते हो वो लगा लोगे, लेकिन robbery नहीं लगा। यस सर। और सर जो एक क्वेश्चन पूछा था आपने कि स्पेसिफिक डिफेंसेस एंड जर्नल डिफेंसेस में जो आईपीसी डिफरेंशिएट करती है सर, उस क्वेश्चन में जो मैंने आंसर किया है सर वो सही है कि गलत है? अभी मैंने आंसर्स अभी मैंने सारे पढ़े नहीं है, मैंने कुछ एक पढ़े हैं, सभी के नहीं पढ़े। आपका अभी तक मेरे पास आया पढ़ नहीं पाया हूँ मैं, मुझे भी देखना है उसमें कि वो आपने क्या लिखा है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, प्रोबेबली बाय टुमारो इट विल बी डन, ठीक है। तो फिर मैं देख लेता हूँ क्या लिखा हो, ठीक है। आंसर बड़ा सिंपल है। जनरल डिफेंसेस की जब बात आती है तो आप 76 से 106 तक की बात करेंगे, और स्पेशल डिफेंसेस की जब बात आएगी तो किसी भी प्रोविजन के अंदर अगर कोई स्पेशल एक्सेप्शन जनरेट किया गया है तो वो स्पेशल डिफेंस है। जैसे कि सेक्शन 300 के अंदर एक्सेप्शंस हैं, आपके 358 के अंदर एक्सेप्शन है, एंड देयर आर सर्टेन अदर प्रोविजन जैसे कि 335 है हमारे पास, ठीक है, जो ग्रीवियस हर्ट एटसेट्रा वाले केसेस में अप्लाई करता है कि सडन प्रोवोकेशन पे आपने हर्ट ग्रीवियस कर दिया, दैट इज द स्पेशल एक्सेप्शन, जिसमें कंप्लीट डिफेंस नहीं मिलता है, rather partial defense जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो that is basically the answer which is to be written over there। बाकी मैं चेक कर लूंगा क्या लिखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, यू वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।